کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو، اگر تم نے ایک بیٹے کو عالم بنایا یا ایک بیٹے کو آپ نے انجینئر بنایا یا ایک خاندان کے کسی فرد کو آپ نے حافظ بنایا تو ایک ہی آدمی کو حافظ بنایا۔ اگر آپ نے لڑکیوں کو عالمہ بنا دیا تو پوری نسل کو آپ نے عالمہ بنا دیا، پوری اولاد کو عالمہ بنا دیا۔ اس لیے کہ یہی وہ بیٹی ہے جو کل ماں کی شکل میں آئے گی، یہی وہ بیٹی ہے جو بہن کی صورت میں ہے، یہی وہ بیٹی ہے جو ماں کی صورت میں آئے گی۔ تو نبی نے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدم میں رکھ دیا۔ ایک جنت کو کعبہ کی دہلیز پر ڈھونڈنے والوں، ایک جنت کو منبر و محراب پہ ڈھونڈنے والوں، ایک جنت کو مدینے کی چھاؤں میں ڈھونڈنے والوں، ایک جنت کو اپنے سجدوں میں ڈھونڈنے والوں، کہاں کھوئے ہو؟ آؤ در مصطفیٰ پر، آؤ در حبیب پر، آؤ در نبی پر۔ نبی نے جنت کو بہت آسان کر دیا ہے۔ نبی نے عرش کی جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں میں ڈال دیا۔ کہا دیکھ، یہی بیٹی ہے جو کل ماں بنے گی۔ اگر ماں شکشت ہے، ماں عالمہ ہے، ماں فاضلہ ہے تو بیٹا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہی بیٹا اپنے وقت کا غوث اعظم بنے گا۔ کسی نے پوچھا تھا عبدالقادر جیلانی اتنی تعلیم آئی کیسے؟ اے عبدالقادر جیلانی آخر آپ پڑھے کیسے؟ یہ نکھار کیسے آیا؟ واہ عبدالقادر جیلانی یہ بڑے پیر آخر یہ توانائی کیسے آئی؟ غوث اعظم نے کہا سنو، یہ میری ماں کی دین ہے، فاطمہ ام الخیر کی دین ہے۔ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو فاطمہ ام الخیر آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی۔ ہے 60 سال کی عمر میں کوئی عورت بچے کو جن سکتی ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں عورت بچے کو پیدا کر سکتی ہے، لیکن باہر حضرت غوث اعظم جب پیدا ہوتے ہیں آپ کی ماں فاطمہ ام الخیر کی عمر 60 سال کی ہے۔ والد محترم حضرت عبداللہ سمئی کا سایہ، حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ ساری تربیت ماں نے کیا ہے اور ایسا ماں نے سنوارا ہے، ایسا ماں نے سنوارا ہے۔ آپ پیدا ہوئے ایران میں، غوث اعظم پیدا ہوئے ایران میں، اور دو ہی مرکز تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک مرکز کا نام نشاپور ہے، دوسرے مرکز کا نام بغداد ہے۔ ماں نے کہا میرے لال، میری عمر کافی گزر چکی ہے، میں کمزور ہو چکی ہوں، میرے لال مجھ کو سہارے کی ضرورت ہے، لیکن میرے بیٹے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جا میرے لال، میں تجھے آزاد کر رہی ہوں، علم حاصل کر لے، بتا تو جائے گا کہاں؟ دو آپشن رکھے ماں نے، جیسے دو جگہوں کا نام بتایا تو عبدالقادر جیلانی نے کہا امی جان، عراق کی سرزمین بڑی معتبر سرزمین ہے، میں عراق کی سرزمین پر جانا چاہتا ہوں۔ تیار ہوتے ہیں، ایک ماں رخصت کر رہی ہے، ساری تربیت تو ماں نے کیا ہے، سارا نکھار تو ماں نے پیدا کیا ہے، اجالا تو ماں نے پیدا کیا ہے۔ 14 سال کی عمر میں ماں نے کہا بیٹے جا تو رہے ہو، یہ پیسہ اپنے پاس رکھ لینا۔ جانتے ہو اس وقت غوث اعظم کی ماں نے 7 سونے کی اینٹ غوث اعظم کو دیا تھا اور صدری چاک کر کے رکھا تھا، بیٹے جا رہے ہو سکتا ہے پلٹ کر آؤ تو میری قبر دیکھو گے، ہو سکتا ہے پلٹ کر آؤ میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ میرے لال عمر کافی میری گزر چکی ہے، کمر چھوٹ چکی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے۔ واہ رے ماں کیا تیری تربیت ہے، واہ رے ماں کیا تیری صحبت ہے، واہ رے ماں کیا تیری تعلیم ہے۔ ایسا جگر پیدا ہو، ایسا گردہ پیدا ہو، ایسا کلیجہ پیدا ہو تو آج بھی ہو سکتا ہے ابراہیم پیدا، آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، انقلاب آج بھی آ سکتا ہے۔ آج ہمارے بچے مکتب جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں نے ہی سب کچھ تیار کیا ہے۔ بیٹے جا رہے ہو جاؤ، وعدہ کرو جھوٹ مت بولنا۔ پہلا سبق یہی تو پڑھایا تھا، بڑا معروف واقعہ ہے، جھوٹ مت بولنا۔ پیر چھوا ہے ماں کا، ہاتھ چوما ہے، قافلے میں بیٹھا دیا ہے، 1-2 میل کا سفر نہیں ہے، پیدا ہوئے ایران میں جا رہے ہیں عراق میں، بڑا لمبا سفر ہے، ہمدان کے جنگل سے گزر رہے تھے، سنا ہے قافلے والوں نے کہا ہے کہ کتنا مال ہے بتا۔ جس کے پاس 100 تھا اس نے 2 روپیہ بتایا، جس کے پاس 5 تھا اس نے دیکھ ہی بتایا۔ عبدالقادر کے پاس آئے، کتنا ہے بتایا ہی نہیں، پورا مال نکال کے رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ اور پیر پھول گئے، بیٹے مال بچانے کے لیے دنیا جھوٹ بولتی ہے، تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا ہے؟ تاریخ ساز جملہ عبدالقادر نے کہا ہے، کہا سنو آ رہا تھا، میری ماں نے پڑھایا ہے میرے لال، پہلا سبق گھر کا یاد
लेकिन झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलूंगा। ये असर, ये सच्चाई देखकर 60 रहज़नों ने कहा अब्दुल कादिर देर न करो, कलमा पढ़ाओ, मोमिन कर लो। आज का आदमी होता मोमिन बना लेता। गौसे आज़म ने कहा नहीं, कलमा नहीं पढ़ाऊंगा, ना तो तौबा करवाऊंगा। कहा अब्दुल कादिर अब क्या कमी रह गई है? कहा बहुत कमी है। कहा वो क्या कमी है? कहा सुनो, दो हक होते हैं, एक हुकूकुल्लाह, दूसरे हुकूकुल इबाद। तुमने बंदे को सताया है, बंदे का माल लिया है, बंदे को लूटा है, जिनको लूटा है वो बेचारे रोते हुए जा रहे हैं, पहले जाके उनसे माफी मांगो। ऐसा नहीं है कि किसी का हम लूट ले, उमरा पे उमरा कर ले, हज पे हज कर ले, बेसूद है, बेमकसद है। अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे हैं जा पहले उनसे माफी मांग। तो वहां का बादशाह दौड़ा हुआ कह रहा है एक काफिले के लोगों रुक जाओ। उनकी रफ्तार कम थी और तेज हो गई, वो समझे कि आ रहा है, जो बचा है वो भी ले लेंगे। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहे बसीरत देखो। रहज़नों ने कहा एक काफिले के लोगों ठहरो, तुम्हारी जमात में, तुम्हारे काफिले में, तुम्हारी महफिल में एक बच्चा था जिसकी उम्र 14 साल की थी। अब्दुल कादिर ने मेरे जीवन की रुखी बदल दिया है, मेरे जीवन की तारीखी बदल दिया है। ए लोगों ये मान लो, मैं तौबा करता हूँ, माफ कर दो। उन लोगों ने कहा मैंने माफ किया। गौसे आज़म की बारगाह में आए। अब्दुल कादिर ने कहा अब मैं तुम्हें माफी नहीं करूंगा, तौबा ही नहीं कराऊंगा, बल्कि अल्लाह की बारगाह तक अब्दुल कादिर पहुंचा देगा। ये क्या देख रहे हो? अब्दुल कादिर जन्नत की राहें सामने देख रहा हो। अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत को अपनी निगाहों के सामने देख रहा हो। कभी तो आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, चोर हाकिम से छिपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छिपे चोर अनोखा तेरा। और आगे बढ़ो, माँ की कहाँ कहाँ मोहब्बत। तभी तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटियों को इज्जत दो, बेटियों की नफरत की निगाह से ना देखो। यही बेटी कलमा बनेगी, तुम्हारी नस्ल चलेगी, तुम्हारा संसार चलेगा। और देखो बेटी का मकाम, माँ की इज्जत, बेटी की शान। हज़रत बायज़ीद बस्तामी को कौन नहीं जानता है? इतने बड़े शेख कुरान पढ़ रहे थे, उठ गए, उठने के बाद जंगल की राह ले लिया है। गौसे आज़म से 400 साल पहले के वली है, जंगल चले गए, 12 साल तक जंगल में वजीफा किया है, 12 साल तक जंगल की घास खाई है, 12 साल तक सहराओं में भटके हैं, रब की बारगाह करम में रोते रहे। 12 साल का अरसा बहुत होता है। और 12 साल के अरसे के बाद एक दिन बस्ताम के किनारे से गुजर रहे थे, बस्ताम के मज़ाफात से गुजर रहे थे, कड़कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। अचानक माँ की याद आ गई। इन्होंने कहा चलो जाके माँ की कदम बोसी तो कर लो। 12 साल के बाद लौटा हो, फौरन हाजिर हो जाते हैं। रात की तारीकी है, दरवाजा बंद है, दस्तक दिया, जैसे दस्तक दिया फिर सहम जाते हैं। माँ को 12 साल तक मैंने कोई खिदमत माँ की किया नहीं है और जगा रहा हूँ, माँ के सर में दर्द होगी, उठ के बैठ जाते हैं। रात की तारीकी गुजरती है, जब नाली से पानी बहा, समझ जाते हैं मेरी माँ उठी है वजू बनाने के लिए। जैसे दस्तक देना चाहे, अंदर से आवाज आती है बायजीद, माँ माँ होती है बायजीद, मैंने समझ लिया मेरा लाल आया हुआ है। जैसे माँ ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए, माँ के हाथ को चूम लिया। माँ ने होलिया देखा, जुल्फे इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी थी, बाल इतने बड़े बड़े हो चुके थे, दाढ़ी के रंग बिल्कुल सफेद हो चुके थे, गर्दो गुबार से पूरा बदन लरसता हुआ था, बदन कांप रहा है। माँ ने बेटे का होलिया देखा, कलेजा कांप गया। माँ ने कहा बेटा क्या हाल बना रखा है? कहा माँ क्या बताओ, रब की मार्फत की तलाश में, रब की कुर्बत की तलाश में 12 साल तक जंगल में टहलता रहा, ना खाने की फिक्र, ना पीने की फिक्र, ना सोने की फिक्र। जैसे माँ ने सुना है उसी वक्त माँ सजदे में चली जाती है, रोकर कहा ए अल्लाह, 12 साल तक मेरा बेटा तेरी तलाश में रहा है, तूने अभी तक अपनी मार्फत नहीं दिया, बेमार्फत। बायजीद कहते हैं 12 साल की मेहनत शाक़ा के बाद मुझे जो चीज नहीं मिली है, माँ की एक दुआ पर पूरी कायनात मिल जाती है। आबरू की शान है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुनो, अगर तुमने एक बेटे को आलिम बनाया या एक बेटे को आपने इंजीनियर बनाया या एक खानदान
खानदान के किसी फर्द को आपने हाफिज बनाया तो एक ही आदमी को हाफिज बनाया। अगर आपने लड़कियों को आलिमा बना दिया तो पूरी नस्ल को आपने आलिमा बना दिया, पूरी औलाद को आलिमा बना दिया। इसलिए कि यही वो बेटी है जो कल माँ की शक्ल में आएगी, यही वो बेटी है जो बहन की सूरत में है, यही वो बेटी है जो माँ की सूरत में आएगी। तो नबी ने जन्नत को खींचकर माँ के कदम में रख दिया। ये जन्नत को काबा की दहलीज पर ढूंढने वालों, ये जन्नत को मिंबर मेहराब पे ढूंढने वालों, ये जन्नत को मदीने की छाव में ढूंढने वालों, ये जन्नत को अपने सजदों में ढूंढने वालों, कहां खोए हो? आओ दरे मुस्तफा पर, आओ दरे हबीब पर, आओ दरे नबी पर। नबी ने जन्नत को बहुत आसान कर दिया है। नबी ने अर्श की जन्नत को खींचकर माँ के कदमों में डाल दिया। कहा देख यही बेटी है जो कल माँ बनेगी। अगर माँ शिक्षित है, माँ आलिमा है, माँ फाजिला है, तो बेटा कभी गुमराह नहीं हो सकता। यही बेटा अपने वक्त का गौसे आजम बनेगा। किसी ने पूछा था अब्दुल कादिर जिलानी इतनी तालीम आई कैसे? ये अब्दुल कादिर जिलानी आखिर आप बढ़े कैसे? ये निखार कैसे आया? वाह रे अब्दुल कादिर जिलानी, ये बड़े पीर आखिर ये तवानाई कैसे आई? गौसे आजम ने कहा सुनो, ये मेरी माँ की देन है, फातिमा उम्मुल खैर की देन है। गौसे आजम जब पैदा हुए तो फातिमा उम्मुल खैर आपकी माँ की उम्र 60 साल की थी। है 60 साल की उम्र में कोई औरत जना बच्चे को जन सकती है? कोई 60 साल की उम्र में औरत बच्चे को पैदा कर सकती है, लेकिन बाहर हजरत गौसे आजम जब पैदा होते हैं, आपकी माँ फातिमा उम्मुल खैर की उम्र 60 साल की है। वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह सुमई का साया, हजरत मूसा वाले जंगी दोस्त का साया उठ चुका है। सारी तरबियत माँ ने किया है और ऐसा माँ ने संवारा है, ऐसा माँ ने संवारा है। आप पैदा हुए ईरान में, गौसे आजम पैदा हुए ईरान में, और दो ही मरकज थे तालीम हासिल करने के लिए। एक मरकज का नाम निशापुर है, दूसरे मरकज का नाम बगदाद है। माँ ने कहा मेरे लाल, मेरी उम्र काफी गुजर चुकी है, मैं कमजोर हो चुकी हूँ, मेरे लाल मुझको सहारे की जरूरत है, लेकिन मेरे बेटे इल्म हासिल करना जरूरी है। जा मेरे लाल मैं तुझे आजाद कर रही हूँ, इल्म हासिल कर ले, बता तू जाएगा कहा। दो ऑप्शन रखे माँ ने, जैसे दो जगहों का नाम बताया तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा अम्मी जान, इराक की सरजमीन बड़ी मोतबर सरजमीन है, मैं इराक की सरजमीन पर जाना चाहता हूँ। तैयार होते हैं, एक माँ रुखसत कर रही है। सारी तरबियत तो माँ ने किया है, सारा निखार तो माँ ने पैदा किया है, उजाला तो माँ ने पैदा किया है। 14 साल की उम्र में माँ ने कहा बेटे जा तो रहे हो, ये पैसा अपने पास रख लेना। जानते हो उस वक्त गौसे आजम की माँ ने 7 सोने की ईंट गौसे आजम को दिया था और सदरी चाट करके रखा था। बेटे जा रहे हो सकता है पलट कर आओ तो मेरी कब्र देखोगे, हो सकता है पलट कर आओ मैं इस दुनिया में न रहूं। मेरे लाल उम्र काफी मेरी गुजर चुकी है, कमर झुक चुकी है, आंखों की बिनाई कमजोर हो चुकी है। वाह रे माँ क्या तेरी तरबियत है, वाह रे माँ क्या तेरी सोहबत है, वाह रे माँ क्या तेरी तालीम है। ऐसा जिगर पैदा हो, ऐसा गुर्दा पैदा हो, ऐसा कलेजा पैदा हो तो आज भी हो सकता है इब्राहिम पैदा, आज भी कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, इनकलाब आज भी आ सकता है। आज हमारे बच्चे मकतब जाने के लिए तैयार नहीं है, माँ ने ही सब कुछ तैयार किया है। बेटे जा रहे हो जाओ, वादा करो झूठ मत बोलना। पहला सबक यही तो पढ़ाया था, बड़ा मारूफ वाकया है, झूठ मत बोलना। पैर छुआ है माँ का, हाथ चूमा है, काफिले में बैठा दिया है, 1-2 मील का सफर नहीं है। पैदा हुए ईरान में जा रहे हैं, इराक में बड़ा लंबा सफर है। हमदान के जंगल से गुजर रहे थे, सुना है काफिले वालों ने कहा है कि कितना माल है बताओ। जिसके पास 100 था उसने 2 रुपया बताया, जिसके पास 5 था उसने 1 ही बताया। अब्दुल कादिर के पास आए, कितना है बताया ही नहीं, पूरा माल निकाल के रख दिया। उसके हाथ और पैर फूल गए। बेटे माल बचाने के लिए दुनिया झूठ बोलती है, तूने झूठ क्यों नहीं बोला है? तारीख सास सुनना अब्दुल कादिर ने कहा है, कहा सुनो आ रहा था, मेरी माँ ने पढ़ाया है मेरे लाल, पहला सबक घर का याद करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। मर जाना, जान दे देना, लेकिन झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोलूंगा, ये असल, ये सच्चाई
मालूम होता मोमिन बना लेता। गौसे आजम ने कहा नहीं, कलमा नहीं पढ़ाऊंगा, ना तो तौबा करवाऊंगा। कहा अब्दुल कादिर अब क्या कमी रह गई है? कहा बहुत कमी है। कहा वो क्या कमी है? कहा सुनो, दो हक होते हैं, एक हुकूकुल्लाह, दूसरे हुकूकुल इबाद। तुमने बंदे को सताया है, बंदे का माल लिया है, बंदे को लूटा है। जिनको लूटा है वो बेचारे रोते हुए जा रहे हैं, पहले जाके उनसे माफी मांगो। ऐसा नहीं है कि किसी का हम वोट ले, उमरा पे उमरा कर ले, हज पे हज कर ले, बेसूद है, बेमकसद है। अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे हैं जा पहले उनसे माफी मांग। तो वहां का बादशाह दौड़ा हुआ कह रहा है एक काफिले के लोगों रुक जाओ। उनकी रफ्तार कम थी और तेज हो गई, वो समझे कि आ रहा है, जो बचा है वो भी ले लेंगे। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहे बसीरत देखो। रहज़नों ने कहा एक काफिले के लोगों ठहरो, तुम्हारी जमात में, तुम्हारे काफिले में, तुम्हारी महफिल में एक बच्चा था जिसकी उम्र 14 साल की थी। अब्दुल कादिर ने मेरे जीवन की रुखी बदल दिया है, मेरे जीवन की तारीख ही बदल दिया है। ए लोगों ये मान लो, मैं तौबा करता हूँ, माफ कर दो। उन लोगों ने कहा मैंने माफ किया। गौसे आजम की बारगाह में आए। अब्दुल कादिर ने कहा अब मैं तुम्हें माफी नहीं करूंगा, तौबा ही नहीं कराऊंगा, बल्कि अल्लाह की बारगाह तक अब्दुल कादिर पहुंचा देगा। क्या देख रहे हो? अब्दुल कादिर जन्नत की राहें सामने देख रहा हो। अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत को अपनी निगाहों के सामने देख रहा हो। कभी तो आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। चोर हाकिम से छिपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छिपे चोर अनोखा तेरा। और आगे बढ़ो, माँ की कहाँ कहाँ मोहब्बत। तभी तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटियों को इज्जत दो, बेटियों के नफरत की निगाह से ना देखो। यही बेटी कलमा बनेगी, तुम्हारी नस्लें चलेंगी, तुम्हारा संसार चलेगा। और देखो बेटी का मकाम, माँ की इज्जत, बेटी की शान। हज़रत बायज़ीद बस्तामी को कौन नहीं जानता है? इतने बड़े शेख कुरान पढ़ रहे थे, उठ गए, उठने के बाद जंगल की राह ले लिया है। गौसे आज़म से 400 साल पहले के वली है, जंगल चले गए, 12 साल तक जंगल में वजीफा किया है, 12 साल तक जंगल की घास खाई है, 12 साल तक सहराओं में भटके हैं, रब की बारगाह करम में रोते रहे। 12 साल का अरसा बहुत होता है। और 12 साल के अरसे के बाद एक दिन बस्ताम के किनारे से गुजर रहे थे, बस्ताम के मज़ाफ़ात से गुजर रहे थे, कड़कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। अचानक माँ की याद आ गई। इन्होंने कहा चलो जाके माँ की कदम बोसी तो कर लो। 12 साल के बाद लौटा हो, फौरन हाजिर हो जाते हैं। रात की तारीकी है, दरवाजा बंद है, दस्तक दिया, जैसे दस्तक दिया फिर सहम जाते हैं। माँ को 12 साल तक मैंने कोई खिदमत माँ की किया नहीं है और जगा रहा हूँ, माँ के सर में दर्द होगी, उठ के बैठ जाते हैं। रात की तारीकी गुजरती है, जब नाली से पानी बहा समझ जाते हैं मेरी माँ उठी है वजू बनाने के लिए। जैसे दस्तक देना चाहे अंदर से आवाज आती है बायजीद, माँ माँ होती है बायजीद, मैंने समझ लिया मेरा लाल आया हुआ है। जैसे माँ ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए, माँ के हाथ को चूम लिया। माँ ने हुलिया देखा, जुल्फे इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी थी, बाल इतने बड़े बड़े हो चुके थे, दाढ़ी के रंग बिल्कुल सफेद हो चुके थे, गर्दो गुबार से पूरा बदन लरसता हुआ था, बदन कांप रहा है। माँ ने बेटे का हुलिया देखा, कलेजा कांप गया। माँ ने कहा बेटा क्या हाल बना रखा है? कहा माँ क्या बताओ, रब की मार्फत की तलाश में, रब की कुर्बत की तलाश में 12 साल तक जंगल में टहलता रहा, ना खाने की फिक्र, ना पीने की फिक्र, ना सोने की फिक्र। जैसे माँ ने सुना है उसी वक्त माँ सजदे में चली जाती है, रोकर कहा 12 साल तक मेरा बेटा तेरी तलाश में रहा है, तूने अभी तक अपनी मार्फत नहीं दिया, बेमार्फत। बायजीद कहते हैं 12 साल की मेहनत शाक़ा के बाद मुझे जो चीज नहीं मिली है, माँ की एक दुआ पर पूरी कायनात